میری خالہ ایک انتہائی جوان اور خوبصورت عورت تھی۔ ان کی عمر صرف 21 سال تھی، مگر میرے خالو کی عمر ان سے بہت زیادہ تھی۔ ان کی شادی کو 4 سال گزر چکے تھے۔ ان 4 سالوں میں انہوں نے سب کچھ آزما کر دیکھ لیا اور اپنی طرف سے بہت کوشش کی، مگر ان کے ہاں اولاد نہ ہوئی، اور خالو اس بات کا قصوروار خالہ کو ٹھہراتے تھے۔ ایک دن خالو کام کے سلسلے میں دوسرے شہر گئے تو رات کو خالہ میرے کمرے میں آ گئی۔ خالہ اس وقت سرخ نائٹی میں تھی۔ میرے پاس آ کر کہنے لگی، ذیشان مجھے بچے کی سخت ضرورت ہے، اگر میرے ہاں بچہ نہ ہوا تو تمہارا خالو مجھے گھر سے نکال دے گا، اس لیے تم یہ کام کر سکتے ہو۔ یہ بات سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ابھی میں کچھ کہہ بھی نہیں پایا تھا کہ خالہ نے مجھے پکڑ لیا اور پھر پوری رات میرے ساتھ۔ آج خالو اور خالہ کے درمیان پھر سے اسی بات پر جھگڑا ہو رہا تھا۔ میں ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا چائے پی رہا تھا، لیکن خالہ کی روتی ہوئی آواز سن کر میں بھاگا بھاگا ان کے کمرے کی طرف گیا۔ خالہ کہہ رہی تھی، مجھے لگتا ہے میں پاگل ہو جاؤں گی، اولاد کا نہ ہونا میرے اختیار میں تو نہیں، لیکن اس بات کی اذیت ہر چند دن بعد مجھے ہی سہنی پڑتی تھی۔ تمہاری فیملی کو بچہ چاہیے، اس چکر میں 3-4 سال سے میں اس تکلیف سے گزر رہی ہوں۔ ہر سال میں امید سے ہوتی ہوں اور میرا بچہ ضائع ہو جاتا ہے۔ مجھے اس تکلیف سے بھی گزرنا پڑتا ہے اور تمہارے اور تمہاری فیملی کے تانے بھی سننے پڑتے ہیں۔ تم سب کو بس بچہ ہی چاہیے جو تمہاری جائیداد کا وارث بن سکے۔ تم سب کے لیے شاید میرا ہونا نہ ہونا اہمیت نہیں رکھتا ہوگا، لیکن میرے لیے یہ سب کس قدر تکلیف کا عمل تھا میں جانتی ہوں، یہ صرف میں جانتی ہوں۔ خالہ یہ کہتے کہتے رونے لگی، جبکہ خالو اسے غصے سے گور رہا تھا۔ اگر تم اتنی تکلیف سے گزر رہی ہو تو مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ، تمہیں جانے سے کسی نے نہیں روکا۔ خالو نے 2 ٹوک الفاظ میں خالہ کو گھر سے نکل جانے کو کہہ دیا۔ یہ سن کر میں کانپ گیا۔ اگر خالہ یہاں سے چلی گئی تو میرا کیا ہوگا؟ میں کہاں جاؤں گا؟ میرا اس دنیا میں خالہ کے سوا کون تھا؟ ادھر دروازے کے پار خالو کی باتیں سن کر میں یہ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا، جبکہ دوسری طرف خالہ اپنے شوہر کی یہ باتیں سن کر اس کے قریب گئی اور اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، آئندہ چھوڑنے کی باتیں مت کرنا، تم اس وقت 30 سال کے ہو، جبکہ مجھے دیکھو میں ابھی 21 سال کی ہوں۔ میں جوان اور خوبصورت ہوں، مجھے اس عمر میں ابھی بھی کئی رشتے مل سکتے ہیں، مگر اس کے باوجود میں ہر سال تمہارے بچے کی ماں بننے کی کوشش کرتی ہوں۔ اس کوشش میں ہر سال کئی اذیت اور تکلیف سہتی ہوں۔ کس کے لیے؟ صرف تمہارے لیے، کیونکہ میں اب بھی تم سے محبت کرتی ہوں، لیکن تم مجھ سے اب ویسی محبت نہیں کرتے ہو جیسے پہلے کرتے تھے۔ اب تم مجھے صرف بچے پیدا کرنے والی مشین سمجھتے ہو، مگر اس کے باوجود میں اس سال بھی تمہارے بچے کی ماں بننے کی کوشش کروں گی۔ بس تم مجھے چھوڑنے کی باتیں مت کرو۔ یہ کہہ کر خالہ نے اپنے شوہر کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ خالو نے ایک نظر خالہ کی طرف دیکھا اور اسے ایک اشارہ کیا۔ خالہ دروازے کے پاس آئی اور اندر سے دروازے کو کنڈی لگا دی۔ میں جیسے تڑپ سا گیا۔ خالو پھر سے خالہ بیچاری پر وہی ظلم کرنے والا تھا۔ میں دروازے کے پاس بے بسی سے کھڑا ہو گیا، مگر مجھ سے زیادہ دیر خالہ کی سسکیاں سنی نہیں گئی۔ خالہ اس وقت رو رہی تھی، سسک رہی تھی۔ شاید وہ اس رشتے کو بچانا چاہتی تھی، مگر خالو اپنے گھر والوں کے دباؤ میں تھا۔ خالہ کو سسکتا دیکھ کر میرا دل کیا کہ میں خالہ کو اپنے سینے سے لگا لوں۔ میرا اس دنیا میں خالہ کے سوا کون تھا؟ خالہ کو کچھ ہو جاتا تو میرا کیا ہوتا؟ میں خالہ کے بنا جی نہیں پاؤں گا۔ میں واپس کچن میں آ گیا اور یہاں آ کر رونے لگا۔ مجھے وہ دن یاد آ گیا جب میں پہلی بار اس گھر میں آیا تھا۔ خالہ اور خالو میرے سگے نہیں تھے، مگر اتنے سال رہنے کے بعد یہ بالکل میرے سگے بن چکے تھے۔ میرا نام ذیشان ہے۔ گھر والے ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں مارے گئے تھے، جبکہ میں نے اپنا ضروری سامان باندھا اور ملتان آ گیا۔ یہاں میرا ایک دوست بن گیا جو میرے لیے نوکری تلاش کرنے لگا، مگر میرے پاس اچھی تعلیم نہیں تھی، اسی وجہ سے مجھے کوئی ڈھنگ کی نوکری نہیں ملی تھی۔ 2 سال تک اسی دوست کے ٹکڑوں پر پلتا رہا۔ آخرکار 16 سال کی عمر میں مجھے ایک سیکیورٹی گارڈ کی نوکری ملی تھی۔ اس دن میرا نوکری پر پہلا دن تھا جب مجھے ایک آدمی نے آ کر کہا کہ تم سے بنگلے کا مالک ملنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا۔ میرا کام بنگلے سے باہر چوکیداری کرنا تھا، گھر آنے جانے والوں کو چیک کرنا تھا، مگر بنگلے کا مالک مجھے اندر کیوں بلا رہا تھا؟ کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی؟ میں بلا وجہ ڈرنے لگا۔ یہ نوکری مجھے بڑی مشکل سے ملی تھی، میں اسے کھونے سے ڈرتا تھا۔ میں اس وقت بڑا ہی خوبصورت اور بھولا بالا تھا، چہرے پر معصومیت بھی بہت تھی۔ بنگلے کا مالک نے مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا، جانتے ہو میں نے تم جیسے معمولی ملازم کو اتنے بڑے بنگلے کی حفاظت کے لیے کیوں رکھا ہے؟ یہ سن کر میں چونک گیا اور اس سے کہا، جی آپ نے حفاظت کے لیے رکھا ہوگا۔ میری بات سن کر وہ ہنس پڑا اور بولا، تم بھی بہت بولے ہو۔ دراصل میں نے ایک 18 سال کی لڑکی سے شادی کی ہے، یہ میری پسند کی شادی ہے۔ گھر والے راضی نہیں تھے، اس لیے زبردستی اس لڑکی سے نکاح کیا اور اسے گھر لے آیا، مگر وہ بہت خوبصورت ہے۔ اب میں کاروبار کے سلسلے میں اکثر ملک سے باہر یا شہر سے باہر رہتا ہوں، روز روز گھر نہیں آ سکتا، میرے گھر والے بھی ساتھ نہیں رہتے۔ ایسے میں اتنی خوبصورت بیوی کی حفاظت کے لیے کوئی ایماندار شخص تو ہونا چاہیے۔ یہ سن کر میں چپ کھڑا رہا۔ اب کیا جواب دیتا، کیونکہ میں نے نہ تو اس کی بیوی کو دیکھا تھا اور نہ ہی اس کے حالات کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا۔
ये सुनकर वो कहने लगा, वैसे तो मेरी बीवी इतनी खूबसूरत है कि उसे देखकर तुम्हारा भी ईमान बह जाएगा, लेकिन चूंकि तुम नस्ली लगते हो और ईमानदार भी हो तो मैं तुम्हें अपने घर नौकर रख लेता हूँ, मगर इसके लिए मेरी एक शर्त है। ये सुनकर मैंने कहा, मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत है, इसलिए मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। ये सुनकर उसने मुझसे कहा, तुमने आज से बंगले के बाहर नहीं रहना, बल्कि मेरे घर के अंदर रहना है, वो भी मेरी बीवी के कमरे के अंदर। ये सुनकर मैं चौंक कर उसे देखने लगा। उसने बहुत अजीब बात कह दी थी। मैंने उसे कहा कि मैं आपकी बीवी के साथ दिन रात कैसे रह सकता हूँ, क्योंकि मैं तो एक अजनबी हूँ और आप अपनी बीवी को मेरे बारे में क्या बताएंगे। ये सुनकर वो कहने लगा, मैं तुम्हें अभी अपनी बीवी के सामने ले जाता हूँ और उसे कहूंगा कि तुम मेरे भतीजे हो और गाँव से यहाँ काम करने आए हो। मेरी बीवी मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, इसलिए वो मेरी बात का एतबार जल्दी कर लेगी। मुझे यहाँ नौकरी करनी थी, इसलिए मैं मान गया। वो मुझे अपनी बीवी के कमरे में ले गया और उसे ये सारी बात बता दी। उस दिन मैंने खाला को पहली बार देखा था। वो मेरी मालकिन थी, मगर मैं उसे खाला कहता था ताकि मैं उसके करीब रह सकूं, इसलिए मैं मालिक को भी खालू कहने लगा। उस दिन के बाद मैं इस घर का तीसरा फर्द बन गया। जैसा खालू ने बताया था, खाला बिल्कुल वैसी ही थी, खूबसूरत और कम उम्र। मैं भी दिनों दिनों में खाला का दीवाना हो गया। वो खूबसूरत होने के साथ साथ नरम दिल भी थी। मैं जो ही उसके करीब हुआ, उसने अपने दिल की सारी बातें मेरे साथ शेयर करना शुरू कर दी। खाला एक दिन मुझसे कहने लगी, मैंने तुम्हारे खालू के साथ पसंद की शादी की थी। मेरे घर वाले इस शादी के लिए राजी नहीं थे, इसलिए हम दोनों ने उनकी मर्जी के खिलाफ शादी कर ली। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे ससुराल वाले इतने जालिम होंगे। अभी मैं 21 साल की हूँ, मगर कई बार माँ बन चुकी हूँ, मगर मेरे बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं। लेकिन मेरे ससुराल वालों को एक बच्चा चाहिए, जिंदा सलामत, मगर वो मेरे दर्द को नहीं समझते। एक माँ के लिए औलाद बस औलाद ही होती है। कौन सी माँ नहीं चाहेगी कि उसकी औलाद जिंदा रहे, लेकिन मेरे शौहर को ये बात समझ नहीं आती। मैंने बस अपने शौहर से यही कहा है कि मैं अभी कम उम्र हूँ, इसलिए अभी मैं मां नहीं बन सकती, मगर उसे हर हाल में बच्चा चाहिए ही चाहिए। मैं बच्चा जन्म देते हुए मर क्यों ना जाऊं। खाला चुपचाप अपने शौहर की बातें बता रही थी। शायद उसे किसी की हमदर्दी की जरूरत थी, इसलिए मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर तसल्ली दी तो वो जैसे टूट चुकी थी। तभी तो मेरे सीने से लग गई और रोते रोते कहने लगी, तुम भी मेरे जरा कम उम्र हो, इसलिए मेरा दुख समझ गए हो, मगर मेरा शौहर तो अपने घर वालों की बातों में आ चुका है, इसलिए वो वहशी दरिंदा बन चुका है। उस पर रात दिन यही धुन सवार है कि मैं फिर से उम्मीद से हो जाऊं और वो मेरा बच्चा अपने वालिदैन को दिखाकर खुद पर फख्र कर सके। खाला मुझसे लिपट लिपट कर रो रही थी। तभी मेरी नजर अध खुले दरवाजे पर पड़ी। खालू वहीं खड़ा हमारी बातें सुन रहा था। वो अपने काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था। 3-4 दिन बाद वो घर आया था, मगर खाला को नहीं पता था कि खालू अचानक घर आ जाएगा। खाला को रोता देखकर उसे बहुत गुस्सा आ गया। वो तेजी से कमरे में आया और खाला को मुझसे अलग कर दिया। उसने खाला को बिस्तर पर फेंक दिया, जबकि मुझे धक्के मार मार के अपने कमरे से निकाल दिया और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। तभी मुझे खालू की आवाज सुनाई दी, अच्छा तुम मेरे पीछे मुझे वहशी दरिंदा कहती हो ना, आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि वहशी दरिंदा कौन होता है। ये कहकर उसने खाला को थप्पड़ दे मारा और खाला जोर जोर से रोने लगी। तभी खालू कहने लगा, मैं तुम्हें आखिरी चांस दे रहा हूँ, अगर चंद माह में तुम उम्मीद से ना हुई तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा, मुझे लाजमी बच्चा चाहिए। खालू खाला पर यूं बरस रहा था जैसे इस बात की जिम्मेदार खाला ही थी। खाला सिसकियां लेती रही, मगर खाला को उसके आंसू भी नजर ना आए। ना ही खाला की सिसकियों ने उसके सख्त दिल पर कोई असर किया। ये सब मुझसे बर्दाश्त ना हुआ तो मैं किचन में आकर रोने लगा। मैं बहुत नरम दिल था, इसलिए मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ था। खालू उसी दिन के बाद घर से बाहर नहीं गया। ये देखकर मैं तड़पने लगा, क्योंकि मुझे खाला के कमरे में जाने का मौका नहीं मिल रहा था। मैं खाला को बेबसी से आते जाते देख रहा था, मगर मैं इससे कोई बात नहीं कर पा रहा था। अगले 2 हफ्ते तक खालू घर पर ही रहा, मगर एक दिन उसकी कॉल आई तो वो शहर से बाहर चला गया। मैं जल्दी से खाला के कमरे में आया। मुझे अंदाजा था कि खाला की तबीयत बहुत खराब है और वो बहुत तकलीफ में होगी, मगर जैसे ही मैं खाला के कमरे में गया, ये देखकर मैं हक्का बक्का रह गया, क्योंकि खाला बहुत खुश नजर आ रही थी। वो तेजी से मेरे पास आई और मेरे कान में एक बात कह दी, जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गई। खाला उम्मीद से थी और इस बात को लेकर वो बहुत खुश थी। वो कहने लगी, तुम्हारा खालू मुझसे भी बहुत खुश है, आखिर उसकी मेहनत रंग ले आई। आज वो ये खुशखबरी अपने वालिदैन को सुनाने गया है। ये सुनकर मैं डरते डरते खाला से कहा, लेकिन अगर इस बार भी आपका बच्चा पैदा होते ही मर गया तो? ये सुनकर खाला ने मेरी तरफ देखा और मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और कहने लगी, ऐसी बदशगुनी की बातें अपने मुंह से मत निकालो, इस बार मेरा बच्चा जिंदा सलामत रहेगा। ये सुनकर मैंने खाला से कहा, हाँ ऐसा ही होगा। खाला को मैंने पहली बार इतना खुश देखा था, इसलिए मैं अभी उसकी खुशी में खुश हो गया। मैं रात दिन खाला का ख्याल रखने लगा। खालू कभी घर होता था और कभी शहर से बाहर चला जाता था। ऐसे में मुझे खाला का ख्याल रखना पड़ता था। खाला की जरा सी तबीयत खराब होती थी तो मैं घबरा जाता था।
और खाला से कहता था कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मगर खाला मेरी बात टाल जाती थी। शायद वो इस बार डॉक्टर वगैरह से दूर रहना चाहती थी, इसलिए खाला के 9 महीने इसी तरह गुजर गए और मैं ये सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि खाला अपनी डिलीवरी के वक्त क्या करेगी। खाला की तबीयत खराब हुई तो मैंने उसे कहा कि मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, मगर वो कहने लगी मेरे बच्चे बगैर डॉक्टर बगैर दाई के पैदा होते हैं, इसलिए मुझे डिलीवरी के लिए किसी डॉक्टर या दाई के पास नहीं जाना, मैं अपना बच्चा खुद ही पैदा कर लूंगी। खाला की बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। ये बात मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगी थी, क्योंकि आज से पहले मैंने तो कभी ऐसा सुना भी नहीं था। अकेली औरत इतना कुछ कैसे कर लेगी, ये सोचकर ही मुझे हैरानगी होने लगी। खाला ने मुझे कमरे से निकाल दिया। उसी दिन खालू घर आ गया। मैंने फौरन उसे ये बात बता दी। वो भी ये बात सुनकर परेशान हो गया और खाला के कमरे में आकर उसे डांटने लगा और कहा तुम बेवकूफी की बातें मत करो, तुम अपनी डिलीवरी खुद नहीं कर सकती, इसलिए ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो। जिस दिन तुम्हारी तबीयत खराब हुई मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, क्योंकि इस बार मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे को कुछ हो। ये सुनकर खाला कहने लगी वो बच्चा सिर्फ तुम्हारा नहीं होगा, मेरा भी होगा, इसलिए मुझे उसे इतना ही प्यार है, तुम फिक्र मत करो, इस बार तुम्हारा जिंदा सलामत पैदा होगा, मगर इसके लिए मेरी एक शर्त है। ये सुनकर खालू खाला की तरफ हैरानगी से देखने लगे। कैसी शर्त? ये सुनकर खाला ने अपने शोहर से कहा कि वो सबसे छुपकर जंगल में अपने बच्चे को जन्म देगी। ये सुनकर खालू और भी हक्का बक्का रह गए। ये कैसे मुमकिन था? खालू खाला पर गुस्सा करने लगे, मगर खाला कहने लगी तुम्हें मुझ पर एतबार करना होगा, क्योंकि ऐसा करना हमारे बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। खालू के पास कोई और रास्ता नहीं था, उसे खाला की बात माननी ही पड़ी। खालू ने कहा अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें इस बार छोड़ दूंगा। ये सुनकर खाला रोने धोने के बजाय मुस्कुराने लगी और खालू से कहा ठीक है, अगर इस बार ऐसा हुआ तो मैं खुद ही तुम्हारा घर छोड़कर चली जाऊंगी। ये सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया, मगर खालू मान गया। उसने खाला से कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें ऐसा करने की इजाजत देता हूँ। ऐसा कहकर खालू कमरे से बाहर चला गया, जबकि मैंने खाला के पैर पकड़ लिए और उससे कहा यह आपने कैसा फैसला किया है? आप खुद से बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, ये काम इतना आसान नहीं है, प्लीज रुक जाएं, ऐसा मत करें। ये सुनकर खाला ने मुझे पकड़कर खड़ा कर दिया और कहने लगी डरो मत, मुझ पर एतबार रखो। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं जानता था कि खाला रोज के तमाशे से तंग आ चुकी थी, इसलिए खाला यहाँ से जाना चाहती थी। प्लीज आप अपना फैसला बदल लें, क्योंकि आप इस घर से चली जाएंगी तो मेरा क्या होगा? मैं तो आपके सहारे जी रहा हूँ। ये सुनकर खाला मुस्कुराने लगी और कहा मैं तुम्हारे खालू से बहुत प्यार करती हूँ और उसे छोड़कर जाने का सबर भी नहीं कर सकती, इसलिए मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी और तुम भी मेरे साथ रहोगे। ये सुनकर मैं अब भी बेइतबार था, इसलिए मैंने बड़ी राजदारी से खाला से पूछा आप इस जंगल में अकेले बच्चे को कैसे जन्म देगी? ये काम बगैर किसी मददगार के बहुत मुश्किल है। अभी भी वक्त है, सोच लें, इससे आपके बच्चे को कुछ भी हो सकता है। मेरी बात सुनकर खाला ने कहा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। यूं ही दिन गुजरते गए और खाला अपने फैसले पर कायम रही, मगर मैं ये सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि खाला अकेले बच्चे को कैसे जन्म देगी। खाला को उस दिन कुछ हो ना जाए, मैं खाला का सोच सोच कर डर रहा था, मगर खाला यूं बेफिक्र थी जैसे कि ये कोई बड़ा मसला ही नहीं था। फिर खाला की डिलीवरी का वक्त आ गया। उस दिन खाला ने एक बैग तैयार किया और उस जंगल में जाने के लिए चल पड़ी, मगर मैंने रास्ते में उसे रोक लिया और कहा मैं आपको अकेले नहीं जाने दे सकता, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। मगर खाला मुझे टुकरा कर चली गई। खाला की तबीयत उस दिन बहुत खराब थी, मुझे उसकी फिक्र हो रही थी, इसलिए मैं छुप छुप कर खाला का पीछा करने लगा। खाला इस बात से बेखबर उस जंगल की तरफ भाग रही थी। पता नहीं खाला को वहां क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ेगा। इस ख्याल से मैं उसके पीछे पीछे भागता रहा। एक जगह जाकर खाला रुक गई। वो बिल्कुल सुनसान जगह थी, इसलिए खाला जमीन पर लेट गई और जोर जोर से रोने लगी। मैं बार बार सोच रहा था कि क्या आगे बढ़कर इस खाला को अपनी मौजूदगी का एहसास दिला दूं या नहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे तजस्सुस था कि अब खाला बच्चे को कैसे जन्म देगी, इसलिए मैं एक गाड़ी के पीछे छुपकर ये मंजर देखने लगा। मगर उसी वक्त खाला ने मुझे देख लिया और वो रोने लगी। मैं समझ गया था कि खाला उस वक्त तकलीफ में थी, इसलिए मैं आगे बढ़ा और उसकी मदद की। उस दिन खाला ने एक बच्चे को जन्म दिया, मगर खुद खाला की तबीयत खराब हो गई, इसलिए मैं खाला को जंगल से ले आया और अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने खाला की जान बचाई। जब खाला को होश आया तो मैं खाला को देखकर रोने लगा और कहा आपकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं भी आपके साथ मर जाता। ये सुनकर खाला मुस्कुराने लगी और अपने बच्चे के बारे में पूछा। मैंने उसे बताया कि उसका बच्चा जिंदा सलामत है। ये सुनकर खाला मुस्कुराने लगी और उसने मुझे बताया दरअसल मुझे एक ऐसी बीमारी थी जिसमें मेरे बच्चे पैदा होते ही मर जाते थे। इसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं था। मैं दुनिया जहान के डॉक्टरों पीरों फकीरों के पास जा चुकी थी और मैं मायूस हो गई थी। मगर तब मुझे एक औरत मिली और उसने मुझसे कहा अगर तुम फलां जंगल में अकेले बच्चे को जन्म दो तो तुम्हारा बच्चा बच जाएगा। मुझको ये बात बहुत अजीब लगी, मगर मैंने ये सुनकर उसकी बात पर अमल करने का फैसला किया और आज मैंने अपने बच्चे को जिंदा सलामत जन्म दिया।
یہ کہہ کر خالہ نے کہا کہ آپ مجھے جلدی سے گھر لے چلو، میں خود تمہارے خالو کو یہ خوشخبری سنانا چاہتی ہوں۔ میں نے سواری کا انتظام کیا اور خالہ کو کندھوں پر اٹھا کر گاڑی تک لایا۔ تھوڑی دیر بعد گھر پہنچے تو خالو پریشانی سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ خالہ نے خالو کو ساری رام کہانی سنائی تو خالو کی خوشی دیدنی تھی۔ یوں ان کے گھر میں خوشیاں لوٹ آئیں اور وہ ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگے۔